Hello everyone, welcome to CIZ. The objective of this video is that all the aspirants preparing for SDOJE, GATE and IES in civil engineering, उनको एक basics of structure पता लग जाए. So let us review what a structure is. So we will start with structures. So first question is, what is a structure? Structure is anything which can perform three functions. First function is, it can take the load. Second function is, it can resist the load. And third function is, it should be able to transfer the load to any other structure. हम इसको समझते हैं इस फंक्शन को. So suppose that आप किसी एक चेयर पर बैठे होंगे. The chair is also a structure because वो चेयर इन तीन फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है. जिस चेयर पर आप बैठे हैं, it is taking the load, वो आपका वेट ले रही है. So that means it is performing the first function. Second, वो चेयर क्या टूट रही है? It is able to resist it because it is not fracturing. So that means it is resisting the load. And third, it is transferring the load to the floor. So therefore the chair that you are sitting on is also a structure. Next example हम देखते हैं. हो सकता है कि आपके सामने कोई टेबल हो जिस पर आपने बुक रखी हो या कोई वाटर बॉटल पड़ी हो. That table is also a structure because the table is taking the weight of the book as well as the bottle. वो एक तो लोड ले रही है and the table is not fracturing. वो टेबल टूट भी नहीं रहा है. And thirdly, the table is transferring the force to the floor. So therefore the table is also a structure. Similarly, in real world, we can find infinite number of structures such as building, bridge, roads, fan, table, dining table, sofa set, everything they constitute structures. But in civil engineering, हम कुछ important structures पर focus करते हैं. So we confine ourselves to some of the most important structures that are generally come across in civil engineering. So first type of structure जो हम देखते हैं, that is bar, and secondly we will come to beam, and then we will come to a column, and then we will see what is a strut, and we will come to some more structures. फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज अ बार. इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम कि आप इसको एक बार वीडियो को पॉज कर कर आप सोच लें व्हाट इज अ बीम, व्हाट इज अ कॉलम, उसके बाद आप इसको कंटिन्यू करें. सो व्हाट इज अ बार. हम किसी भी थ्री डायमेंशनल मेंबर को हम देख सकते हैं. वी कैन व्यू इट एज इट हैज वन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस एंड अदर टू ट्रांसवर्स एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल, ये डस्टर जो है, इट इज अ थ्री डायमेंशनल मेंबर. दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो लॉन्गेस्ट होती है अलोंग द लेंथ. दिस इज वन ट्रांसवर्स एक्सिस, दिस इज अनदर ट्रांसवर्स एक्सिस. सो देयर आर टू ट्रांसवर्स एक्सिस जो परपेंडिकुलर होती हैं अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. दिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड एक्सियल एक्सिस, जो एक्सियल ही है. दिस इज एक्सियल. तो suppose that this is a structure, this is a member. ये हमने इसकी longitudinal axis plot करी. This is transverse axis, this is another transverse axis which is into the board. अब यही member बार भी हो सकता है, बीम भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, स्ट्रट भी हो सकता है. It only depends upon line of action of force. Line of action of force. Force की line of action क्या है इस member पर, इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो बार है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है. सो इफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कोइंसिडेंट विद द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, देन दिस विल बी अ बार. सो दिस मेंबर इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि जितनी फोर्स हम इसको राइट से लगा रहे हैं उतनी फोर्स हम इसको टुवर्ड्स लेफ्ट लगा रहे हैं. दिस इज इन इक्विलिब्रियम. And since the line of action of force is coincident to the longitudinal axis, therefore this is a bar subjected to compression. नेक्स्ट अगर हम देखें कि अगर मैं कंप्रेशन की जगह इसको
टेंशन लगाता हूं यानी कि पुल करता हूं, दिस इज सब्जेक्टेड टू टेंशन, देन ऑल्सो दिस member will be called a bar. So bar is any member which is subjected to axial stresses, either tensile stress or compressive stress. Next हम इन चारों में से मूव करते हैं बीम पर. What is a beam? So हमने देखा बार हम उसको कहते हैं when the line of action of forces coincident to the axial axis, longitudinal axis, then it is called a bar. But beam हम उसको कहेंगे when the line of action of forces perpendicular to longitudinal axis. So ये एक मेंबर है, when the force will be like this, perpendicular, line of action of force will be perpendicular to this, तब मैं इस स्ट्रक्चर को बार कहूंगा, बीम कहूंगा. इन पर्टिकुलर आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, बीम कैन बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन मेंबर. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बीम हॉरिजॉन्टल ही होता है. इन जनरल एक बहुत मिसकंसेप्शन ये है कि मेनी स्टूडेंट्स दे से दैट बीम इज एनी हॉरिजॉन्टल मेंबर, बट बीम कैन बी वर्टिकल ऑल्सो, इट कैन बी इंक्लाइंड ऑल्सो. द थिंग इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. नेक्स्ट हम जाते हैं स्ट्रट पर, देन वी विल कम टू कॉलम. व्हाट इज अ स्ट्रट? सो स्ट्रट्स is also a bar that is only subjected to compressive stress. Strut, I repeat, strut जो है ये भी एक बार ही है which is subjected to only compressive stresses. Strut can be inclined, vertical or horizontal, anything. फिर next we will move to column. Columns are vertical struts. ये आपको important रखना होगा. They are vertical struts. And they are bars subjected to compression. So हम ये बोल सकते हैं that बार का सबसेट स्ट्रट है, स्ट्रट का सबसेट कॉलम है. So next we'll move to number 5, that is a beam column. A beam column is a structure which is doing the dual purpose of a beam and a column. वो beam का भी काम कर रहा है and column का भी काम कर रहा है. That means it is taking transverse load also like a beam and it is also taking compressive load. So beam column जो जनरली मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स में जिनको हम कॉलम बोलते हैं वो एक्चुअली कॉलम नहीं होते हैं, वो बीम कॉलम होते हैं, क्योंकि दे आर टेकिंग ट्रांसवर्स लोड, दे आर ऑल्सो टेकिंग फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स एंड उस पर एक्शियल वर्टिकल लोड भी आ रहे हैं. बट इन जनरल हम इसको जब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो वहां पर हम बीम कॉलम को कॉलम वी ओनली कॉल देम कॉलम्स ओनली, क्योंकि अगर हम उसको बीम कॉलम बोलेंगे दैट मे क्रिएट सम कंफ्यूजन अमंग साइट इंजीनियर्स. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज अ शाफ्ट. Shaft is another structural member that is subjected to torsional movement. They are subjected to torsion. So any member which is subjected to torsion is called shaft. So in general, we have come across with these basic single member structures. Next, अगर हम composite structures को देखेंगे, so we have most common type of structure is truss. Then we will come across with frame. So what is a truss? Truss is a structure which is a combination of bars. ये हमने bars देखी थी. Bars में सिर्फ axial stresses आता है. So जब मैं इन bars को combine कर बनाऊंगा, that is a truss. Combination of bars and they are hinge jointed. Hinged. क्योंकि ये hinged है, therefore ट्रस इज नेवर सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट. ट्रस के मेंबर्स में हमेशा एक्शियल स्ट्रेसेस ही आती हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेम किसको कहते हैं. सो फ्रेम इज एनीथिंग विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ बीम एज वेल एज बीम कॉलम्स. अ फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एज वेल एज बीम कॉलम्स. दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम एंड कॉलम्स, क्योंकि अगर कॉलम होगा तो कॉलम में बेंडिंग मोमेंट कभी नहीं आता, बिकॉज कॉलम में सिर्फ
एक्शियल स्ट्रेसेस, एक्शियल कंप्रेसिव लोड आता है, कॉलम इज नॉट सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट. दिस इज वन ऑफ द अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिसकंसेप्शन जो जनरली स्टूडेंट्स फेस करते हैं. सो अ फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स एंड बीम कॉलम्स. सो आई होप कि हमने कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में आई हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई योर बेसिक टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. कुछ आपके मिसकंसेप्शंस आई होप क्लियर हुई होंगी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.